today we are going to start a new, not the chapter, but entire new curriculum. So बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपका क्लास 7 का नया करिकुलम, क्यूरियोसिटी का नया करिकुलम. एंड एज यू रिमेंबर हमने क्लास 6 में बात की थी क्यूरियोसिटी के बारे में. व्हाट इज क्यूरियोसिटी? वी डिफाइंड इट and we talked about it, that the curiosity is, you know, your desire to learn things more. And I gently encourage you to ask questions, be more curious about the world around you. So here now we are moving on to the next topic, or the next step in the foundation of your science classes, which is the ever evolving world of science. सो बच्चों हमने यहाँ पर एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस ये वर्ड क्यों यूज़ किया है आपको समझ में आएगा. मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ एवर इवॉल्विंग का क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल हम अभी क्लास 6 से क्लास 7 में मूव कर रहे हैं. यू विल ऑब्जर्व कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी चीज़ों के बारे में, हाउ थिंग्स around us work. We are going to improve our understanding. So this is what it is precisely mean by ever evolving world of science. The world of science is not stagnant. Our knowledge is not stagnant. ये क्या हो रही है, दिन पे दिन improve हो रही है. जैसे जैसे हम और चीज़ों को deeply questions पूछते हैं, हम अपनी curiosity को बढ़ाते जाते हैं, उसी तरीके से बच्चों हम चीज़ों को आंसर करते हैं. ठीक है, हम नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं. सो इट एड्स ऑन टू आवर नॉलेज, है ना. तो दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस. नाउ लेट्स मूव ऑन. सो as you all remember that we defined what science is. So science is basically a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in. So बच्चों ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 6 में कि साइंस एक इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इट्स वे ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इट्स अ वे दैट हाउ यू आर गोना आंसर द क्वेश्चंस व्हिच अराइज इन योर माइंड रिगार्डिंग द थिंग्स अराउंड यू. सो साइंस इज एग्जैक्टली दैट वे which shows you the path to, you know, first ask a meaningful question and then try to answer it scientifically. So that is science. And then as I said that in class 6 I gently encourage all of you to ask questions, be more curious about what is happening around us, right? Now in class 7th we are going to go a step beyond this. Now I will emphasize, as a teacher it's my duty to emphasize you to ask even more meaningful questions. तो आप लोगों को क्या करना है? What is your duty? Your duty is to ask even more meaningful questions. I mean हम trivial questions तो सभी पूछते हैं, right? What is 1 plus 1 equals 2? But we have to go one step beyond this and we would have to ask more meaningful questions. So in this class I will, you know, invite all of you to learn what we have in this standard to learn about science and also to approach this subject in a more meaningful way. So in these lines I would like to show you some interesting, you know, we might go into a philosophical discussion here, but I think it's important in this context. So let us look at a very, you know, exciting picture which I'm going to show you right now. So here it says, teacher opens the door, but you must enter by yourself. It is a very famous Chinese proverb. So bachcho, as a teacher, as a mentor, as a host, it's my duty that I will lead you to a door, but as a student रेस्ट ऑफ द थिंग इज अप टू यू. बाकी का काम तो आप ही लोगों को करना है. मैं आपको एक दिशा दिखा सकती हूँ बट आपको दरवाजे को खोल कर आगे खुद ही बढ़ना है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, दैट I as a teacher can instill curiosity into you, but as a student what is your duty is to come up with even more interesting and meaningful questions. Now here there is something very, you know, important to observe. For example, if you are a curious student, you must observe that in this figure itself we have so many things. In the background we have water, in that background we also have galaxies, right? And here at the bottom we have plants, we have living life. So this is all, it's a glimpse of what we read in class 6. So now you have to go beyond this, and we are now in a sense we are opening our door to class 7th.
सो अब हम आगे चलकर देखेंगे कि हम क्लास 7th में अपनी अंडरस्टैंडिंग को, एज आई सेड, इट्स एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, वी विल लुक इनटू दैट. बट माय सर्मन इज नॉट डन येट एंड आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू. हियर, लुक हियर. अब आप कहेंगे कि मैडम क्या उपदेश देने बैठ गई हैं आज, बट लिसन टू मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये भगवत गीता का एक दृश्य है. इसमें अर्जुना, ही इज ही इज प्रेइंग विद लॉर्ड कृष्णा कि मैं क्या करूँ, ही इज इन अ डिलेमा. एंड इन दिस ये भगवत गीता यहीं से शुरू होती है. ये पूरा एक सरमन है, उपदेश है, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था. ये हमारे हिंदुइज्म में आप उठाकर देखेंगे सबसे बड़ा उपदेश माना जाता है बच्चों. तो ये मैंने यहाँ पर क्यों शो किया है, बेसिकली एक मेंटर को या एक टीचर को होना चाहिए लॉर्ड भगवान कृष्ण जैसे, है ना, और एक स्टूडेंट को होना चाहिए अर्जुन जैसे. अर्जुन को याद रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे. एंड व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, दैट ही यूज्ड टू आस्क वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चंस. तो इसीलिए बच्चों, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो टीचर भी आपको चुनेगा और उसके पास जितना भी नॉलेज है, द टीचर विल गिव इट टू यू, राइट. सो आई थिंक you should go today home and ask your parents more about Bhagavad Gita. It's one of the beautiful script in Hinduism which talks about the morality, the karma, and the cycles of life. जैसे कि आपने पढ़ा था water cycle 6th standard में, do you remember? We talked about that the water, it evaporates from the surface of oceans, then it comes back into the ocean in the form of rain, and hence the cycle continues. In the same way, in Hinduism, we say that we human beings are born and die in this universe again and again. We talk about rebirth. So what is our role in the universe? So इसी तरीके से, इसी फिलॉसफी के ऊपर बेस करके पूरा सरमन है जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं. तो बच्चों, आज आप जाकर अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, किसी से आप पूछिएगा भगवत गीता के बारे में. एंड योर मेन इंक्वायरी शुड बी बेस्ड ऑन अर्जुना. सो आपको स्टूडेंट बनना है अर्जुन के जैसा, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब हम बच्चों जल्दी जल्दी से इस डायग्राम के बाद आपका सिलेबस देखेंगे कि हम क्लास 7th में पढ़ने क्या वाले हैं. लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि आपको मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछने हैं. सो व्हाट डू आई एग्जैक्टली मेंट बाय आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस? हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, बिफोर दैट हैव अ लुक, टेक अ लुक हियर. आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है. सो इट सेज दैट, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल नोटिस हियर, ये बच्चे जो है ये किससे खेल रहे हैं? पेपर के बनाए हुए ऑरिगामी बर्ड से, या जो पेपर प्लेन्स होते हैं उससे खेल रहे हैं. यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी उड़ रहे हैं. देन यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व सम बटरफ्लाइज फ्लाइंग, and then finally you will observe an aircraft or an airplane flying into the sky. So बच्चों, जो हमारी curiosity होती है, it has actually taken us from flying these paper planes to building these highly sophisticated aircrafts. So that is why we say the most important thing is to have curiosity. अगर इंसान के अंदर curiosity ही नहीं होती उड़ने की, for example, आज से कुछ सालों पहले, है ना, Wright brothers invented these एयरप्लेन्स. बट बिफोर दैट, अगर हम लोग बात करते थे उड़ने की तो मजाक उड़ाया जाता था उन लोगों का जो कहते थे कि हम उड़ सकते हैं, राइट. बट वी कम अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स, एंड वी फाइनली बिल्ट एयरप्लेन्स, एंड वी हैव in a way achieved our dream to fly. Now human beings evolutionary पंख तो उगा नहीं सकते, है ना, बर्ड्स के जैसे, but we engineered these things. So it's a way, हमारी क्यूरियोसिटी थी, जहाँ हम पहले क्या करते थे कि इन पेपर प्लेन से खेलते थे और उससे हम कहाँ पहुँच गए. We have achieved the marvel of engineering. We have also started to explore the outer space. So we talked about it a bit in class 6, and we will extend our knowledge into this class as well. Okay, so the basic thing here is to have curiosity. तो अगर वो curiosity ही नहीं होती human mind में कि हम उड़ सकते हैं, तो शायद हम कभी भी पेपर प्लेन से एक्चुअल प्लेन्स तक पहुंचते ही नहीं. So this is the power of curiosity. Okay, now focus here. आपकी NCERT की ही टेक्स्ट बुक में एक
आंसर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे अदर वे राउंड पूछा गया है, नाउ फ्रेम द क्वेश्चंस और क्वेश्चन द आंसर। आपको आंसर मालूम है लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो आंसर है वो है 42। नाउ यू माइट आस्क वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज 21 plus 21? The answer is 42. Or let's say what is 30 plus 12, right? Or anything like that. But these are very trivial questions. बच्चों आप खुद सोचो, ये तो कोई भी बच्चा पूछ लेगा ना। आप सब लोगों ने अभी तक मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लिए होंगे, so you have pretty good knowledge how to come up to 42. But what I meant by curiosity is now try to frame the question in a different direction. Okay, here. So यहां देखिए बच्चों, आपका आंसर है 42। आपको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है। नाउ one way or one approach is to frame the question in a mathematical context, right? So we will try to think here in terms of context कि हम किस किस context में question prepare कर सकते हैं. So the first is very trivial one or very obvious one. So we can ask question number 1, like as I said, what is 21 plus 21 equals to? It is 42. We can also ask what is 30 plus 12? It is also equals to 42. But let's make it more interesting. अगर हमें मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करनी है तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग फ्रेम कर सकते हैं, राइट? लाइक वी कैन आस्क what is the sum of the square roots of 25, 9 and 16? Okay, so इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए. मेरा क्वेश्चन क्या है? What is the sum of the square roots of 25, 9 and 16? अब ये क्वेश्चन भी सेम ही है, मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा गया है. आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये होता है मेरा 5 प्लस दिस इज 3 plus this is 4. Now if you will square these, essentially this is 25 plus 9 plus 16 and this comes about 42. So ये एक थोड़ा more interesting way हुआ अगर आपको mathematical sense में ही ये question को पूछना है तो. Now आप इस question को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं. If you remember in class 6th we learned about dimensions, right? हमने डिमेंशंस के बारे में पढ़ा था, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, हमने ऐसा यूनिट्स पढ़ा था, मेट्रिक सिस्टम क्या है, इंपीरियल सिस्टम क्या है, हमने पढ़ा था. तो अब अगर किसी ने आपको जस्ट 42 बोला है तो उसका आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर एज? सो अब आपने क्वेश्चन को मैथमेटिकल कंटेक्स्ट में फ्रेम ना करके टाइम रेफरेंस के फ्रेम में क्वेश्चन को बोला है. व्हाट इज योर एज? A possible answer could be 42. Someone could have an age of 42. What is your weight, for example? तो ये हो गया आपके मेजरमेंट के कंटेक्स्ट में आपने क्वेश्चन को फ्रेम किया. ठीक है, what is your weight? कितना वेट है? और what is your waist size? कमर का आपका साइज कितना है? 42 inches, for example. और what is your height? Again, a child could have 42 inches height. So आप इस तरीके से क्वेश्चन को अलग अलग वे में फ्रेम कर सकते हैं. This is what I meant by asking more interesting question. इसी क्वेश्चन को आप एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में भी फ्रेम कर सकते हैं. So a quick refresher. हमने पढ़ा था कि अर्थ के चारों ओर और बहुत सारे प्लैनेट्स के भी चारों ओर क्या करता है? मून रिवॉल्व करता है. ठीक है, so a moon revolves around a planet and a planet in turn revolves around sun. है ना, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है सोलर सिस्टम में. फिर हमने गैलेक्सी के बारे में भी पढ़ा था. हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, द मिल्की वे गैलेक्सी. नाउ डू यू नो दैट मिल्की वे गैलेक्सी के भी अराउंड पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है. दैट मीन्स मैंने आपको इस तरीके से कुछ बताया था कि अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि ये है हमारी गैलेक्सी और सन इसके सेंटर से कहीं यहाँ पर होता है, राइट? और पूरा जो हमारा प्लैनेट है, जो सोलर सिस्टम है, ये हुआ अर्थ. ठीक है, ये सन के अराउंड रोटेट कर रहा है. और क्या आपको पता है बच्चों, ये जो सन है वो भी गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है. डू यू नो दैट? सो इन एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि
सन, आपको पता है सन एक तरीके का स्टार है और वो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू डाई, इट इज गोइंग टू गेट बर्स्ट, ठीक है। एवरी स्टार डाइज वंस इट्स फ्यूल गेट्स एग्जॉस्टेड। तो हमारा सन भी एक दिन खत्म हो जाएगा और एज द लाइफ ऑन अर्थ एज वी नो इट विल ऑल्सो एंड, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट वुड बी फार इन फ्यूचर। बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स आर स्टिल लेफ्ट बिफोर दैट इवेंट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तब तक तो हम शायद अपने कर्मा के साइकिल से भी मुक्त हो चुके होंगे। सो वी डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। सो द क्वेश्चन हियर इज, तो अगर सन जो है वो गैलेक्टिक सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको पता है सन को बर्स्ट होने से पहले वो एग्जैक्टली 42 रेवोल्यूशंस करेगा, यानी कि 42 बार वो जो है पूरी गैलेक्सी में रोटेट करेगा एंड देन roughly after 42 revolutions it will burst. So now you can frame this question in this way, that how many revolutions the solar system will take around galaxy before bursting or before dying the star, or let's say you will go to in more technical detail, it will become a red giant and so on. तो वो जो star है, ठीक है, वो before becoming into something else, तो वो कितने रोटेशंस लेगा। अब मैंने 42 को आप यहाँ पे देखिए कितने अलग अलग कंटेक्स्ट में फ्रेम किया है, राइट। आप आगे चल के रेनबोज के बारे में भी पढ़ेंगे कि रेनबो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसमें आपको इस 7th क्लास में आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम चांद को देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट उससे टकरा कर अर्थ तक आती है, दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। टकराना और वापस से आना, दैट इज रिफ्लेक्शन। एक दूसरा भी फिनोमिनन होता है बच्चों, अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर ग्लास रखा होता है ना, ग्लास में जो स्पून होती है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, ऐसा लगता है टूट गई हो, ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा टीजर अभी से दे रही हूँ, थोड़ा सा टीजर दे रही हूँ। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट जब किसी मीडियम में, रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो वो क्या करती है, थोड़ा सा बेंड कर जाती है। यहाँ पर ये मत जाना कि मैंने रे को किस तरीके से बनाया, बस एक कंसेप्ट समझ लो, वो अपनी दिशा से क्या होती है, थोड़ा भटक जाती है, बेंड कर जाती है, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन। आपका जो रेनबो बनता है, जो आसमान में आप रंग बिरंगा देखते हैं ना, बारिश के बाद रेनबो बनता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा होता है बच्चों। तो क्या आपको पता है कि रिफ्रैक्शन के लिए एंगल जो है ना एग्जैक्टली 42 डिग्रीज का होना चाहिए। अब यहाँ देखो मैं 42 को कितने तरीके से फ्रेम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पूछ सकती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इटसेल्फ, और अगर कोई मुझे आंसर देता है 42, अगर कोई बंदा न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है तो 42 इज अ वेरी वैलिड आंसर। कितनी सारी चीज़ों का आंसर 42 आ रहा है यहाँ पर। एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मुझे किसी चीज से, ठीक है, 7 बनाना है, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं लिख सकती हूँ 1 + 6, मैं यहाँ पर 2 + 5 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको 1 + 1 + 5 भी लिख सकती हूँ। तो मेरे पास 7 बनाने के बहुत सारे तरीके होंगे, है ना। तो अगर आप काउंट करेंगे तरीके 10 बनाने के, ठीक है, हाउ टू मेक 10 को आप कितने अलग अलग वे में पार्टीशन कर सकते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन पार्टीशन दिस नंबर 10। द आंसर इज 42। डू दिस एक्सरसाइज टुडे। आप घर पे जाओ, बैठकर आप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाओ। फॉर एग्जाम्पल 10 कैसे बन सकता है, 1 + 9 से बन सकता है, ठीक है, 2 + 8 से भी बन सकता है, और 3 + 7 से भी बन सकता है, एंड सो ऑन। आप देख लीजिए आगे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे 4 + 6 भी हो सकता है, 5 + 5 भी हो सकता है। नाउ हम इसी को क्या कर सकते हैं, 3 नंबर के कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं, 1 + 1 + 8 से भी बन सकता है। तो आप जितनी भी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर लिखेंगे ना, टोटल 42 यूनिक वे में आप 10 बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन पार्टीशन 10, दैट द आंसर इज 42। नाउ कितना ट्रिवियल से दिखने वाला आंसर, क्या आपने कभी सोचा था उसके बारे में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं? बन सकते हैं बच्चों। सो दिस इज योर क्यूरियोसिटी, ठीक है। हमें उस लेवल तक पहुंचना है कि हम बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चंस पूछे, बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछे। अब आपसे इतना कुछ जानना एक्सपेक्टेड नहीं होगा। एक्चुअली मैंने भी यहाँ पर गूगल सर्च करा है कि
42 के क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों को बताने के लिए. बट द थिंग इज, look at the ways. There are so many different ways we can frame the question for this answer. तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली अपने क्वेश्चंस को मीनिंगफुल बनाना है. ठीक है, हमें एक अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाना है जिससे हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करें. दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव. नाउ वी विल मूव ऑन टू सी अ सॉर्ट ऑफ प्रीव्यू. ओके, कि हम 7th क्लास में पढ़ने क्या क्या वाले हैं. चलिए देख लेते हैं. तो बच्चों, ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट. आप क्या क्या पढ़ेंगे. द चैप्टर नंबर 1 इज एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस. वो तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा, मैनी फोक्स, मैनी स्टूडेंट हैव दिस क्वेश्चन, दे आर वेरी परप्लेक्स्ड, व्हाई आर वी हियर, क्यों हमको इस क्लास में बिठाया गया है, क्या हम सीखने वाले हैं. सो इस प्रीव्यू से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिलेगा कि आप यहाँ पे सीखने क्या वाले हो. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि हमें इस क्लास में करना क्या है. हमें मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि मीनिंगफुल इंक्वायरीज only will lead us to a better understanding or the meaningful answers. एक बारी बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन सही दिशा में पूछ लिया ना, आंसर तो अपने आप मिल जाएगा. सो we actually have to focus on framing meaningful questions. तो यही है हमारा चैप्टर नंबर 1 का थीम. और हम अब बाकी चैप्टर्स में देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं. चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिस एंड न्यूट्रल. चैप्टर नंबर 3 में, अच्छा ठीक है, मैं एक एक को यहाँ पर डिटेल में समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. ओके, तो बच्चों अगर आपको याद हो, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. फूड से हमें ऐसा क्या मिलता है, फूड हम खाते ही क्यों हैं, क्यों खाना खाते हैं. वेरी ऑब्वियस आंसर इज एनर्जी. देन हमने क्लास 6 में हमारा जो मेन मोटिवेशन था वो क्या था, चीज़ों को ऑब्जर्व करना और क्लासिफाई करना, है ना. हमने हर जगह यही किया. हमने देखा लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, आप प्लांट्स को और एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. हमने कुछ नए साइंस के फिनोमेना के बारे में भी सीखा. बट अब हम क्लास 7 में एक स्टेप आगे बढ़कर पूछेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों होता है. नाउ आवर इंक्वायरीज आर गोना बी मच मोर डीपर. ओके, सो देखो बच्चों, आपने पढ़ा था क्लास 6 में कि फूड में बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है ना, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. ये हमारे मेन कंपोनेंट थे. इसके अलावा हमने पढ़ा था वाटर भी हमें ज़रूरी होता है और रफेज भी हमें चाहिए होता है. रफेज, ठीक है, जिसको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं. तो ये सब हमें खाने में चाहिए होता है. ठीक है, लेकिन हमने कभी ये पूछा नहीं कि जब मैम आप यहाँ पर विटामिन मिनरल की बात कर रही थी और आप कह रही थी कि भाई हमें फ्रूट खाने चाहिए, अब कुछ फल जो है खट्टे से क्यों नज़र आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो गया, है ना, हमारा नींबू हो गया, टमाटर भी, इनफैक्ट बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, कुछ कुछ वेजिटेबल्स हैं, खट्टे, हमें टेस्ट, उनका टेस्ट खट्टा होता है. अब ऐसा क्यों होता है. तो बच्चों इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं कि जो भी हम खाते हैं ना, उसका एक बेसिक कैरेक्टर होता है जिसको हम हिंदी में बोले तो अम्लीय, क्षारीय, ठीक है, एसिडिक हो सकता है इंग्लिश में बोले, या बेसिक हो सकता है. तो क्योंकि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो नेचर में एसिडिक होती हैं. ठीक है, अब आगे वाली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में. उसमें आपको इसको एक इट्स अ मैग्नीट्यूड स्केल, तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ कौन से मैग्नीट्यूड स्केल पे आ रही है. बट इस क्लास में आपको मोटे मोटे तौर पर सीखना है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. अब जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं ना, ज़्यादातर वो एसिडिक होती हैं. एसिडिक चीज़ों की प्रॉपर्टी ही है कि वो खट्टी होती हैं. और जितनी भी चीज़ें बेस होती हैं ना, वो थोड़ी सोपी होंगी, थोड़ी बिटर होंगी. ठीक है, साबुन भी आपका बेस होता है. तो आपको अब चीज़ों को फर्दर क्लासिफाई करना है एसिड में, बेस में और न्यूट्रल में. ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल क्या होता है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. हम जितने भी अपने आसपास केमिकल सब्सटेंसेस हैं
उनको बेसिकली इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। खट्टी वाली चीज़ें हो गई एसिड, तो इसका मतलब जो भी हमारा नींबू, टमाटर, आंवला, ये सारी चीज़ें हुई, ये हुए हमारे एसिड, इसीलिए वो खट्टे होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद बच्चों डे टू डे ऑब्जर्वेशन में आपने अगर कभी इस चीज़ को नोट किया हो, मान लो अगर आपके ऊपर शर्ट के ऊपर वाइट शर्ट आपने पहनी है, खाते खाते खाना गिर गया, खाने बनाते समय मम्मी ने खाने में डाली हुई थी हल्दी, ठीक है, अब आप उसको धोने जाओगे ना, तो आप कभी नोटिस करना धोते टाइम में ना जो येलो स्टेन होगा वो रेड पड़ जाएगा, ठीक है, येलो स्टेन टर्न्स इनटू रेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक बच्चे ने वाइट शर्ट पहन रखी थी, उसने यहाँ पर खाना गिरा दिया जिसमें बहुत सारी हल्दी थी। अब ये इसको धोने गया ना तो ये रेड में चेंज हो गया, धोते धोते ये पूरा रेड हो गया, उसके बाद धूप में सूखने के बाद वापस से इट टर्न्स इनटू येलो। बट ये चेंज क्यों हो रहा है, ये येलो से रेड में क्यों चेंज हो गया? तो ये आपके होते हैं बच्चों इंडिकेटर्स। टर्मरिक या फिर जो हल्दी है वो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडिकेट करती है, कुछ कुछ सब्सटेंसेस का नेचर बता सकती है, यहाँ पे जो चीज़ गिरी थी वो एसिड है या बेस है। तो हम इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिकेटर्स इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। बच्चों हमने बात करी थी 6th क्लास में कि वी ह्यूमंस हैव बिकम प्रिटी गुड एट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, चाहे वो विंड सोर्स हो, वाटर सोर्स हो, या फिर यूरेनियम एटम्स को तोड़ के ही हमें क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़े। तो वी हैव ओवर द ईयर्स बिकम प्रिटी गुड एट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सुबह उठते ही आप सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे, है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है? बेसिकली वहाँ पे आपकी वायर्स होती है, उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, राइट। तो हम बेसिक ये जो फिनोमिना है फ्लो ऑफ करंट एंड व्हाट इज अ सर्किट, ठीक है, तारें क्या होती हैं, तारों का स्पेशल मटेरियल होता है क्या कोई? अगर मैं मानो तारों की जगह यहाँ पे प्लास्टिक लगा दूं या वुड की फट्टियां लगा दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करूं, वुडन पाइप्स लगा दूं, क्या बिजली जाएगी उनमें से? तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल की ही क्यों बात करते हैं? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सबने देखा होगा घर में इस तरीके से बल्ब होता है ना। अभी तो ये सब एलईडी से रिप्लेस हो चुका है, अभी उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी देखने को मिलता है। आप इसको कभी पास से देखना बच्चों, इस तरीके से, इसमें ना टंगस्टन की वायर होती है जिसमें इस तरीके से बहुत सारे कॉइल्स होते हैं। जो बल्ब होता है ना, बल्ब में बड़ा वाला बल्ब होता है येलो कलर का जो जलता है, उसमें अंदर टंगस्टन की वायर होती है। अब टंगस्टन आपका एक तरीके का मेटल है, बात करेंगे उसके बारे में भी, बट पहले आप यहाँ पे सुन लीजिए। तो टंगस्टन की वायर है, मैंने उसमें क्यों नहीं प्लास्टिक टांग दिया या क्यों वहाँ पे वुड नहीं लगा दिया, मैंने ग्लास क्यों नहीं लगा दिया वहाँ पर? मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट चूज किया टंगस्टन बल्ब बनाने के लिए, है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि टंगस्टन की वायर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इट इज़ अ मेटल, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आप कोई सर्किट बनाते हैं, ये तो सबने देखा होगा ना, ये तो सेल है, ड्यूरा सेल वाले जो भी हो गए, है ना, हमारे पास बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सेल लगा दिया, सेल से कुछ वायर कनेक्ट किया और एक छोटा सा हमने एलईडी बल्ब लगा दिया यहाँ पर। अब देखो कोई बच्चा क्रिएटिव हो गया, उसके पास यहाँ पे तार कम पड़ी थी, उसने बीच में स्पून लगा दी। अब इस स्पून की जगह यहाँ पर अगर मैं वुड लगा देती या ग्लास लगा देती, क्या ये सर्किट काम कर पाता है? नहीं कर पाता, एक्चुअली नहीं कर पाता, क्योंकि स्पून एक स्पेशल मटेरियल की बनी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे सर्किट के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? वायर होती है, बैटरी होती है जो कि हमारा सोर्स होती है एनर्जी का, है ना। फिर हमारे ये आ गए ड्रेन्स, जहाँ पर हम एनर्जी यूज करेंगे, यानी कि बल्ब या एलईडी जिसको हमें जलाना है। तो हम छोटे छोटे जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें उसकी बात करेंगे, और हम बात करेंगे स्पेशल मटेरियल्स की विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन। मैंने यहाँ पर बात करी मेटल्स की, कि मेटल्स जो होते हैं ना बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि हमारे जो तारे लगी होती है कॉपर की वायर होती हैं वो ज़्यादातर, है ना। तो वाई वी आर सो स्पेसिफिक अबाउट सिलेक्टिंग कॉपर वायर्स, है ना। वहाँ पर मैंने लेट्स से उसके बाहर ठीक है पीवीसी की कवरिंग होती है विच इज़ अ प्लास्टिक, बट अंदर जो वायर होती है, जो तार होता है, वो एक मेटल का है। सो वाई वी आर सो स्पेसिफिक अबाउट दैट मेटल, ठीक है। ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब मैं बार बार मेटल मेटल ये सब वर्ड बोल रही हूँ, है ना। आपको याद होगा हमने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस, उसमें हमने या ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमने आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया था कि वो किस तरीके की चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर अब हम इस क्लासिफिकेशन में एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। अगर हम अपने आसपास की सारी ही चीज़ों को उठाकर देखें, बल्कि खुद की बॉडी को अगर हम उठा के देखें एज अ ह्यूमन बॉडी, है ना, हमारे अंदर भी हमारी बॉडी भी अगर आप बायोलॉजी की टर्म्स में बात करेंगे तो छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है ना। और अगर आप केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करेंगे ना, हम कहेंगे वो छोटे छोटे एटम्स से बनी हुई है, अणुओं से बनी हुई है, ठीक है। आपकी हड्डियां किसकी बनी है? कैल्शियम की। योर बोन्स, जो आपके रगों में खून बहता है, योर ब्लड हैज आयरन इन इट, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अब हम उन एलिमेंट्स को बेसिकली आप पढ़ेंगे यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, यानी कि क्या धातु है और क्या अधातु है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक टेबल टाइप की दिखाई दे रही होगी, ये है पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाएंगे ना, आप इसकी नॉलेज को इवॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर इसको मेजर दो कैटेगरी में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इस पीरियोडिक टेबल को हम यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये वाले जितने भी ब्लू वाले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, हम कहेंगे कि ये सारे क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर मेटल्स, सब के सब धातु हैं, ठीक है। और इस साइड पे आपको जितने भी ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेरे हैं नॉन मेटल्स, अधातु हैं ये, ठीक है। और बीच वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये सारे, ये आपको क्लास 6 में नहीं पढ़ना, आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ये होते हैं मेटलॉइड्स और सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली आपके जो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उसमें सब में हम सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। उसका भी रीजन आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा। अभी के लिए आपको मोटे मोटे तौर पर बस इतना देखना है कि चीज़ों को अगर हम मोटी मोटी दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो या तो होती है मेटल या होती है नॉन मेटल, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही पढ़ना है, डिवाइडिंग द एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस इनटू टू कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप इस फोटो को देखो। अब आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास 6 में स्टेट्स ऑफ वाटर की बात की थी, रिमेंबर, जहाँ पर हमने कहा था कि आइस हो सकता है, देन वाटर हो सकता है, वाटर वेपर हो सकते हैं। सेम ही फिगर को मैंने यहाँ पे लगा दिया, आइस क्यूब्स मेल्ट हो रही हैं, ठीक है। अब एक टेबल पे 4 केले रखे हुए हैं, रखे रहने दो उन्हें, 2 हफ्ते तक पड़े रहने दो। पहले वो हरे से पीले होंगे, पीले से काले हो जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक कॉपर का कॉइन दिखा रखा है, बहुत सालों बाद अगर वो उसकी कोई ढंग से टेक केयर ना करे, या उसको कभी पानी में फेंक दिया, गिर गया, उठा लिया उसको, तो उस पर क्या हो जाती है, इस तरीके से काही टाइप की जम जाती है। इसको रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ कॉपर कॉइन, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल है, कैंडल इज बर्निंग, तो इसका वैक्स जो है वो पिघल रहा है। तो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है बच्चों, आप जो नोटिस करेंगे, दैट इज चेंज, है ना। हर चीज जो है वो अपनी, यहाँ पे क्या है, बर्फ जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रही है। वाटर बेसिकली इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर, फ्रॉम लिक्विड, आइस से क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। केले भी जो है वो अपनी अवस्था को चेंज कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, राइप होते जा रहे हैं। और यहाँ पे तो इनफैक्ट वो सड़ ही गए हैं। और फिर यहाँ पर देखो, इस कॉइन में क्या हो गया, रस्टिंग लग गई। तो हर चीज क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, दैट इज चेंज। अब हम इस चेंज को एक्चुअली 2 क्लासेस में बांट सकते हैं। एक तो हो गया फिजिकल चेंज और एक हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइस का पिघलना,
ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ पर वाटर की जो है फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राइप हो रहा है, राइप होके दूसरा ही सब्सटेंस बना रहा है, यहाँ पे तो सड़ गया है। तो यहाँ पर जो चेंज है वो केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। अगेन यहाँ पर देखो कॉइन के केस में इसके सरफेस पे जो ग्रीन कलर का काई जमा है या फिर रस्टिंग हुआ है, ये एक नया सब्सटेंस ही बन गया इसके सरफेस पे, ठीक है। तो ये भी केमिकल चेंज है। यहाँ पर देखो मोमबत्ती जल रही है ना, यहाँ पर आप कहोगे कि फिजिकल चेंज है मैडम, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, पिघल गई है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती तो वैसे की वैसी है, बस वैक्स पिघल गई है। लेकिन नहीं बच्चों, ये भी तो देखो ना, ये आग जल रही है, इसके वैक्स के जो वेपर्स हैं उनसे आग भी बन रही है ना। तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो रहे हैं। आप इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे कि चेंज को हम फिजिकल और केमिकल कब कहेंगे, कब जो चेंज है चीज़ों में वो केमिकल कहलाएगा, कब वो फिजिकल कहलाएगा, ठीक है। ये हम जानेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट चेंजेस, लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी सेंसिटिव इशू विच इज adolescence, which is around your age, right? आप लोग अराउंड 12 ईयर्स के होंगे, है ना। तो अब योर एज ग्रुप इज वेरी स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है, उसके लिए एक स्पेशल नाम भी हम लेकर आए हैं, अडोलेसेंस। तो अडोलेसेंस में आप क्या करते हैं, यू ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस इन योर बॉडी। आपको अपने बॉडी में, अपने आसपास, अपने मूड्स में बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं, है ना। जैसे जो लड़के होते हैं वो फेशियल हेयर डेवलप करने लगते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट उनके ये जो एडम्स एप्पल होता है, थ्रोट बाहर को ऐसे निकलने लगती है। लड़कियों की बॉडी अलग तरीके से डेवलप करने लगती है ना। यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर द changes in the facial hairs. Now girls also have changes in their armpits, they have hairs. इनको हम बोलते हैं the unwanted hair are called pubic hairs, ठीक है। ये आपके pubic hairs आने लगते हैं, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट अलग हो जाता है। आप लंबे तो हो ही रहे हो, you are growing in size, ठीक है, आप दिन पे दिन लंबे होते जाते हो, बट आपका बॉडी का जो शेप है वो अलग होता जाता है। कहीं से वो ब्रॉड हो रहा है, कहीं से वो नैरो हो रहा है। समटाइम्स दीज चेंजेस कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस, है ना। आपको लग सकता है आई एम नॉट लाइकिंग दीज चेंजेस एंड दिस इज हाउ यू आर गोना रिएक्ट, आई एम सो मच स्ट्रेस्ड, आई रियली डोंट वांट टू चेंज एट ऑल। दिस can make your parents worry about you. But bachcho, let me assure you about one thing, this is a phase of life and all of us have gone through this phase. This phase is called adolescence. So next time अगर आप अपने आप को या किसी और को कंप्लेंट करते हुए सुनो that you have changed, so it's not you, it's actually hormones, ठीक है। So the hormones, आपके अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं जो इन चेंजेस को ट्रिगर करते हैं। सो देयर इज नथिंग टू गेट टेंस्ड अबाउट इट, देयर इज नथिंग टू गेट स्ट्रेस्ड और even ashamed about it. This is the changes, physical and chemical changes inside your body. आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हो या आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कि आप बहुत ही इंटेंसिवली इमोशनल हो गए हो। सो बच्चों, these are the characteristics and you are not responsible for it, the hormones are responsible for it. हायर क्लासेस में आप बेसिकली एक पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये अलग अलग आपके ग्लैंड्स का सिस्टम होता है जो अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में। बट यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर जानना है। नाउ साइंस ऑल्सो गिव्स यू एन एज टू आर्ग्यू विथ साइंटिफिक लेवल, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे यू हैव चेंज्ड, आप तो एकदम बदल गए हो भाई, आप पहचान में ही नहीं आ रहे मुझे, सो नाउ यू कैन आर्ग्यू इट्स हॉर्मोन्स, राइट। दीज आर हॉर्मोन्स विच इज चेंजिंग यू एंड ऑल्सो दीज चेंजेस आर नॉट ऑल बैड, इन फैक्ट दिस गिव्स यू एन एज। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, अगर मुझे इस एज में जाकर साइकिल चलानी सीखनी है ना, इट वुड बी लाइक एक्सपीडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट, पहाड़ चढ़ने वाला काम हो जाएगा मेरे लिए। बट यही चीज़ आपको बोली जाए ना, आप मुझसे कहीं जल्दी और बहुत ही एफिशिएंटली साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ये सब चीज़ें सीख सकते हो। सो दिस एज ग्रुप इज़ वेरी स्पेशल, इट कम्स विद इट्स ओन सरप्राइजेस। आपके अंदर चीज़ों सीखने की जो कैपेसिटी है वो एडल्ट से कहीं ज़्यादा होती है। सो यू शुड एक्चुअली
embrace this age. आपको इस एज को embrace करना चाहिए. It comes with challenges, with changes and with certain capabilities जो adults में नहीं होती हैं. So it's a very intricate time. That's why we're going to talk about all these issues in this different chapter on your basis of changes in internal and external your body. Okay, so we will talk about adolescence in this chapter. Now यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर इन नेचर. नेचर में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको जब बहुत ठंड लगती है ना सर्दियों में, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप गरम दूध पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, ठीक है, और एकदम सर्दियों का टाइम है, तो आप दोनों हाथ से उसको पकड़ लेंगे बिकॉज इट गिव्स यू हीट, राइट. तो आपको क्या हो रहा है, जो गरम कप है उसकी हीट आपके हाथों में आती है, आपको गर्माहट फील होती है एंड यू फील बेटर. हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना एकदम गरम गरम कप पकड़ के सर्दियों में, राइट. तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है हीट ट्रांसफर का. तो हीट जो होती है बच्चों वो हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर होती है ना. और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपने सर्दियों में गर्म कप को हाथ में पकड़ा हुआ है और आपको अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हो, हीट ले रहे हो, है ना. तो ये जो है ये स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल है एक प्रोसेस का जिसको हम कहते हैं कंडक्शन. यानी कि उसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है ना वो सरफेस के कांटेक्ट की वजह से होता है. नाउ हम इसी चीज को देखते हैं, सर्दियों में हम धूप में भी जाके खड़े हो रहे हैं, अब वहां पे तो हम सन को तो टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें गर्मी लगती है, राइट. वी फील हीट, वी फील बेटर. हाँ, कितना अच्छा लग रहा है धूप में खड़ा होके. तो आपको वहां पर भी हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन बिना छुए हो रही है, राइट. तो इसका मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर करने के एक से ज्यादा मैकेनिज्म है. यानी कि हम छूकर भी हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं और बिना छुए भी कर सकते हैं. बिना छुए जो होती है उसको बोलते हैं रेडिएशन. एंड देयर इज वन मोर टाइप ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट विच इज कॉल्ड कन्वेक्शन. तो हम इस चैप्टर में ये तीनों ही कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, ये है हमारे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. यानी कि किस मोड से हीट ट्रांसफर हो रही है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. मैं छोटा सा प्रीव्यू दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पर देखो, यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, उसके ऊपर कढ़ाई रखी हुई है. अब ये जो हीट है ना वो क्योंकि कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे हीट इसमें जा रही है. कढ़ाई में क्या है, मेटल है, ठीक है, हो सकता है आयरन की कढ़ाई है या एल्यूमिनियम की कढ़ाई है. तो ये कांटेक्ट की वजह से हो रही है. तो जो कढ़ाई गर्म होगी वो कंडक्शन से गर्म होगी. लेकिन कढ़ाई के अंदर जो खाना है ना, पानी है, जो भी है, उसमें जो गर्माहट जाती है ना वो कन्वेक्शन की वजह से होती है. और इसके आसपास बैठे हुए लोगों को आग की वजह से गर्मी फील होगी, जैसे हमें सन की वजह से गर्मी फील होती है ना. तो वो है एग्जाम्पल हमारा रेडिएशन का. इसी फिगर में तीनों प्रोसेस होती हुई एक साथ नजर आती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और भी ज्यादा. वी विल गेट टू नो अबाउट दीज प्रोसेसेस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. तो बच्चों मैंने आपको इस तरीके का कलर व्हील आपकी क्लास 6 में भी दिखाया था और रेस्ट एश्योर्ड ये आप क्लास 11-12 तक भी देखने वाले हैं, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू परस्यू फिजिक्स. ठीक है, दिस इज एसआई सिस्टम. तो एसआई सिस्टम में बच्चों हम दो चीज ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. वो है मेजरमेंट ऑफ वेट, जब हमने बात की थी मेट्रिक सिस्टम की कि हम वेट को ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. उसके बाद हमने लेंथ की भी बात की थी, है ना, कि लेंथ को हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स में मेजर करते हैं. तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई हमारी मीटर्स. तो ये दो चीजें हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. नाउ 7th क्लास में हम एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे विच इज टाइम, है ना. टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे टाइम की. टाइम क्या होता है, उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं. वेल, टाइम क्या है ना बच्चों, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज यू नो साइंटिस्ट इवन आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टाइम एग्जैक्टली इज. बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट. हमें इतना पता है कि हमारी जो घर की जो क्लॉक है ना, वॉल क्लॉक है, वो कुछ दिखा रही होती है मूवमेंट, वही हमारा टाइम है. यानी कि इट्स अ पैसेज, है ना, टाइम पास हो रहा है.
इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स। आप सुबह उठे, उसके बाद आप स्कूल गए, इसके बीच में 1 घंटे का टाइम है ना। आप उठे, आप नहाए, रेडी हुए, स्कूल के लिए निकले, 1 घंटा हो गया। तो वो ड्यूरेशन, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, है ना, कि टाइम आपका पास हो रहा है। आपको 2 इवेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है टाइम बता रहा है, ठीक है। तो वही है हमारा टाइम। टाइम को मापने के बच्चों, अभी तो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है एक वॉल क्लॉक जो कि पेंडुलम बेस्ड है, ठीक है। आजकल तो डिजिटल वाली चल गई हैं, हमें रीड भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे फास्ट हैंड्स, मिनट हैंड, ये सब, इन सब चीज़ों को आपको डिजिटल स्क्रीन पे आ जाता है कितना टाइम है। पुराने टाइम में पता है आपको, अगर आप में से कुछ लोगों ने जंतर मंतर जाके देखा हो, इस तरीके के सन डायल्स बने होते थे, है ना, सन डायल बोलते हैं इसको। यहाँ पे ऐसा एक रहता है, एक बना रहेगा। अब उसकी शैडो, यहाँ पर देखो शैडो पड़ रही है ना। तो जैसे जैसे सन मूव करता है ना बच्चों, इसकी जो शैडो है वो भी यहाँ पर डायल पे मूव करती रहती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। तो पुराने ज़मानों में सन डायल के थ्रू टाइम का पता चलाया जाता था, क्योंकि तब तक पेंडुलम क्लॉक्स नहीं बनी थी। हम तो कहीं एडवांस है, हमारे पास डिजिटल क्लॉक है, ठीक है। तो टाइम को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एसआई यूनिट की मैंने ऑलरेडी बात कर ली, सेकंड्स होती है ना। देन वी टॉक अबाउट मिनट्स, आवर्स एंड सो ऑन, बट सेकंड इज द एसआई यूनिट, है ना। अब उसके बाद बच्चों, इफ यू रिमेंबर, हमने मोशन की बात करी थी। मोशन में हमने कहा था लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। अब आप यहाँ पे मुझे देख के बताओ, ये सब लोग जो दौड़ लगा रहे हैं, ये कौन सा मोशन है, अगर आपको अपना 6th क्लास का चैप्टर याद है तो जल्दी बताओ। दिस इज लीनियर मोशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर मोशन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस को टाइम के साथ क्लब करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, है ना। स्पीड क्या होती है ये हम जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे, आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं तो आपने बाइक्स पे या कार पे ना इस तरीके के मीटर लगे हुए देखे होंगे, जो आपके व्हीकल की स्पीड इंडिकेट करती है, कितने किलोमीटर पर आवर चल रहा है ना, या कितने माइल्स पर आवर चल रहा है। वही होती है हमारी स्पीड। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो होता है आपका स्पीडोमीटर। उसके अलावा एक और मीटर लगा होता है व्हीकल्स के ऊपर, जो आपको बताता है आपकी व्हीकल कितने किलोमीटर चल चुकी है, वो होता है हमारा ऑडोमीटर। तो ये सब मीटर्स के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में, स्पीड के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। नाउ तो बच्चों, हमने 6th क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, दीज आर ऑल कॉल्ड न्यूट्रिएंट। नाउ वी विल गो वन स्टेप अबव इट, ठीक है। खाना हमने खा लिया, अब खाने के साथ हमारी बॉडी में जाकर क्या होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने के बाद खाना हमारी बॉडी में चला गया, अब वो क्या क्या पैसेज लेगा। तो बच्चों जैसे मान लो आपका ना एक टैप लगा हुआ है, ठीक है, टैप लगा हुआ है, पानी आ रहा है यहाँ से, ठीक है। आपको क्या करना है, पौधों में पानी देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पाइप लगाएंगे और जाके पौधों में पानी छिड़कना शुरू कर देंगे, है ना। तो हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में नसें होती हैं ना, वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो उनमें क्या होता है, ब्लड होता है। तो ये जो नसें हैं ये हमारी पाइप का काम करती हैं, है ना। और जो खून है वो वहाँ पर पानी का काम करता है, कि वो सब चीज़ों को ले करके जा रहा है, हमारे ऑर्गन्स में फ्लो करवा रहा है। तो बच्चों जैसे हम खाना खाते हैं ना, वो एक तरीके की पाइप से जाता है, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, कुछ हमने खाया, वी टेक इट फ्रॉम द माउथ, देन वो जाता है ईसोफेगस में, फिर वो धीरे धीरे करके जाता है हमारे स्टमक में, फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन फाइनली वी रिमूव इट फ्रॉम द एनस। तो ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है।
एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ेंगे कि खाना खाने के बाद वो क्या पैसेज लेता है, कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, इट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इनटेक ऑफ फूड। खाना खाने के बाद क्या होता है, हमने खाना खाया उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है ना। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है सिंपलर पार्ट्स में, है ना। उसके बाद हमारी बॉडी उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर मैंने 5 प्रोसेसेस का नाम लिया, वो सब के सब न्यूट्रिशन में आते हैं जब हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी मैंने 5 नाम लिए वो सारी प्रोसेस टुगेदर मेक्स न्यूट्रिशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। बच्चों जब हम सांस लेते हैं, वी हैव दिस नोजेस, ठीक है, हमारे पास नाक है। We have a special dedicated system called the respiratory system. We have a set of lungs to process that air, है ना। सांस को प्रोसेस करने के लिए वी हैव लंग्स। देन क्या प्लांट्स के पास भी इस तरीके का कोई सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? नहीं बच्चों। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको 6th क्लास में बताया था कि प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनके ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये है, देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको पोर्स, यही है स्टोमेटा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। अब हम देखते हैं प्लांट्स भी तो बच्चों क्या कर रहे हैं, रूट्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, उसके बाद वो पत्तियों में अपना खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। नाउ वी विल आल्सो लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको क्लास 6 में कितना टीजर दिया ना, मतलब फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इतनी बार कहा, एंड वी नेवर टॉक्ड अबाउट द एक्चुअल प्रोसेस। इस क्लास में हम करेंगे, हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में क्या होता है। खाना बना रहे हैं प्लांट, हमें इतना पता है, लेकिन क्या केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है उसका डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें एक्चुअली वाटर लेते हैं, वाटर और क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और जड़ों से क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। So water and carbon dioxide in the presence of sunlight turns into glucose, है ना, एंड ऑक्सीजन। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस, हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। उसके साथ बच्चों जो पानी है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको टैप का एग्जांपल दिया था कि हमारा जो नसें हैं वो एक तरीके के पाइप्स की तरह काम कर रही हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नसों के थ्रू और ब्लड में डिजॉल्व होके फिर हमारे सारे ऑर्गन्स में जाते हैं। तो क्या इस तरीके के जो पाइप हैं या जो वीन्स हैं, है ना, ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं। उनको हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने एनिमल्स की बात करी, ह्यूमंस की बात करी कि हमारे पास डेडिकेटेड सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, तो प्लांट्स में भी डेडिकेटेड सेल्स हैं, ठीक है। स्टोमेटा है इनके पास सांस लेने के लिए, और इनके पास क्या है, एक तरीके की जो नली हमने बात करी है ना, वो जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज हैं। तो यहाँ पर इनका एक चैनल बना हुआ है, यहाँ पर देखो वाटर का जो ट्रांसफर होता है ना, इस तरीके से इनकी नलियां बनी हुई है वाटर ट्रांसफर होने के लिए, यही होती है जाइलम। और फ्लोएम भी बना हुआ है, ठीक है, फ्लोएम भी है। तो जाइलम और फ्लोएम की हम बात करेंगे, इनका जो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो जाइलम और फ्लोएम से बना होता है प्लांट्स में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर नंबर 10 तक। अब हम चैप्टर नंबर 11 में बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विच इज ऑल अराउंड अस। आप मुझे देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे सामने लैंप रखा हुआ है ना, जो मेरे क्या कर रहा है, लाइट को मेरे फेस पर प्रोजेक्ट कर रहा है, वो फेस टकरा कर कैमरे में जा रही है और आपको दिखाई दे रही है। दैट्स हाउ आई एम विजिबल टू यू। तो हम पढ़ेंगे लाइट के नेचुरल सोर्सेज क्या है। ऑब्वियसली द अल्टीमेट सोर्सेज सन। रात को हमें थोड़ी बहुत स्टारलाइट भी मिलती है, कभी कभी क्या होता है बिजली चमकती है तो थंडर की वजह से भी लाइट होता है, एंड दिस इज जुगनू।
जुगनू तो आप सब लोगों ने देखा होगा ना, रात को भंवरे जुगनू जो होते हैं वो चमकते हैं, तो उनसे भी नेचर में हमें लाइट के ये सब एग्जाम्पल मिलते हैं. नाउ देयर इज ह्यूमन इन्वेंटेड लाइट ऑल्सो. आर्टिफिशियल लाइटिंग भी तो है ना, पुराने टाइम से ही हम यूज करते आ रहे हैं, है ना. आदिवासी टाइम से, हंटर गैदरर टाइम से हम यूज करते आए हैं कि तो पहले हम क्या करते थे, मशाले जलाते थे. देन वी इन्वेंटेड द कैंडल्स, है ना. अभी भी हम दिवाली पे दिए जलाते हैं, दिया तो है ही. उसके बाद बच्चों ये इस तरीके से केरोसिन के लैंप्स होते थे पुराने टाइम में. अभी तो आप शायद, अभी के टाइम में शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे. नाउ वी हैव रिप्लेस्ड इट विथ दिस फ्लैश लैंप्स, है ना, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या जो बैटरी से रन लाइट्स होती हैं उन पे हम स्विच कर गए हैं. वी ऑल्सो हैव टॉर्चेस, है ना, दैट इज पावर्ड बाय सेल्स. तो हम यहाँ पर सब लाइट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और हम लाइट की मेन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. और जो हम बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना कि ग्लास के अंदर चम्मच रखते हैं टेढ़ी नजर आती है, वो होता है रिफ्रैक्शन. हम इस स्टैंडर्ड में रिफ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, हम मेनली वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन की बात करेंगे बस हम, ठीक है. रिफ्लेक्शन बेसिकली ये है, लाइट आई, टकराकर डायरेक्शन चेंज होकर चली गई, ठीक है. हम रिफ्लेक्शन की लॉस पढ़ेंगे. यहाँ पर देखो, ये लड़की क्या कर रही है, सन रेस को यहाँ पर इसने मिरर पकड़ा हुआ है हाथ में, रिफ्लेक्ट करके इसकी इमेज यहाँ पर इस दीवार पे बना रही है. तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि अगर हम धूप में बाहर जाते हैं, देन इट कास्ट्स अ शैडो, परछाई बनती है हमारी, राइट. सो लाइट कास्ट शैडो ऑल्सो. तो हम ये जो सारी लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, इसकी बात डिटेल में इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है. अब देखो बच्चों, इस पूरे सफ़र को, क्यूरियोसिटी के इस पूरे सफ़र को, जैसे कि हमने जर्नी शुरू की थी 6th क्लास में, हमने देखा था कि वी एंडेड इट विद बियॉन्ड अर्थ चैप्टर, है ना, कि अर्थ के बियॉन्ड क्या क्या है. देन वी टॉक्ड अबाउट स्टार्स, वी टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टलेशन, वी टॉक्ड अबाउट planets, we talked about moons, we also talked about asteroids and comets. And then we see that we live in a galaxy which is called Milky Way galaxy, which is a part of very broad universe which has billions and trillions of galaxies. तो हमने इतना बड़ा सब कुछ देखा. But now for the sake of clarity, now just step out of the bigger picture और हम बात करते हैं अर्थ और सन की, ठीक है. हम हैं अर्थ पर. अब हम अर्थ, यहाँ से हम क्या क्या फिनोमिनन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप देखोगे कि सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, देयर आर समर्स, देयर आर विंटर्स. तो सीजन आपके बेसिकली कैसे बनते हैं, आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी अंदाजा है, आपने ज्योग्राफी की क्लास में भी पढ़ा होगा. तो बेसिकली जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है. उस रिवॉल्यूशन की वजह से, और दैट क्लब्ड विद द टिल्ट ऑफ अर्थ, ठीक है. तो जो अर्थ का टिल्ट है और उसका रिवॉल्यूशन, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से बेसिकली क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं. यहाँ पर देखो, ये है दिसंबर, है ना, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारे लिए क्या होगा, दिसंबर में विंटर्स होंगे. देन कम टू जून, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है ना. देन वी हैव समर्स. सो वी आर 6 months अपार्ट. तो 6 months में क्या होता है, अर्थ एकदम दूसरे पोजीशन पे चेंज हो गई, उसी की वजह से आपके बन रहे हैं सीजन्स. तो आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है कि सीजन्स एक्चुअली कैसे बनते हैं, ठीक है. उसके बाद आपको एक फैसिनेटिंग फिनोमिना पढ़ना है यहाँ पे, आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा, विच इज एक्लिप्सिस, ग्रहण, है ना. बहुत टाइप के होते हैं, मतलब मेनली 2 टाइप के हमें तो देखने को मिलते हैं. एक तो होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण. यानी कि एक बारी जो हमारा सन होता है वो एक्लिप्स्ड हो जाता है ना. उसमें भी हमारे कई टाइप होते हैं. एक फुल पूर्ण ग्रहण होता है ना, और एक अर्ध ग्रहण होता है, यानी कि आधा ही जो है कट रहा है, आधा ही एक्लिप्स हो रहा है. हम यहाँ पे डिटेल में सब कुछ बात करेंगे. ये फुल सोलर एक्लिप्स है, ये पार्शियल है, और यहाँ पर क्या है, एक डायमंड रिंग जैसा दिख रहा है. तो हम ये डिटेल में बात करेंगे, सोलर एक्लिप्स होता कैसे है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे. उसके अलावा हम बात करेंगे लूनर एक्लिप्स की ऑल्सो, है ना. थोड़े कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही था चंद्र ग्रहण. उसमें क्या हो जाता है, हम बात करते हैं रेड मून की, एकदम चांद जो होता है रेड रेड जैसा दिखाई देने लगता है. यहाँ पर देखो, यहाँ पे है ना, ये मून दिख रहा है आपको, रेड कलर का दिख रहा है. तो वो क्या हो गया, एक्लिप्स हो गया, ठीक है. अब अगर सूर्य ग्रहण होता है ना बच्चों, पूरा काला हो जाता है,
लेकिन चंद्र ग्रहण में ना फिर भी चांद लाल लाल चमकता रहता है, जबकि वो ग्रहण हो चुका है, फिर भी वो हमें दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ग्रहण हो गया है तो दिखना ही नहीं चाहिए ना, मतलब पूरा काला हो जाना चाहिए, फिर भी वो हमें रेड दिखता है। तो ये सब क्या डिफरेंसेस हैं, एक्लिप्स किसको बोलते हैं, कैसे होता है ना। और आप लूनर एक्लिप्स, मून का जो एक्लिप्स होता है ना, चंद्र ग्रहण, उसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स बेसिकली होता कैसा है, कैसा दिखाई देता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली everything you need to know about eclipses, we are going to talk about this in this chapter. Also we are going to talk about how seasons form. So बच्चों, ये है आपका एक brief overview कि आपको क्लास 7 में क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, now I really hope that you all come up with very interesting and very intrusive questions, and this time the quality of your questions is going to be much better, right? So with this, today's class is finished. Tomorrow I will come up with a new chapter. Until then, take care and I will see you tomorrow. Bye bye.